डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। हमने डिस्कस किया था कि हेल्दी होना मतलब डिसीज फ्री होना नहीं है। जनरली हेल्थ, इसका मिसकॉन्सेप्शन लोगों में क्या होता है, मैंने आपको यह बताया था कि अगर कोई ज़्यादा फैट है तो उसको भी हेल्दी कहते हैं, या डिसीज फ्री है देन दैट पर्सन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेल्दी। बट हेल्थ इंक्लूड्स 3 important एस्पेक्ट्स। कौन से 3 एस्पेक्ट्स? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ ए पर्सन। फिजिकली फिट होना, बीइंग डिसीज फ्री, इट इज द पार्ट ऑफ बीइंग हेल्दी। ओके, मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मेंटल हेल्थ कहाँ दिखती है, कहाँ पे, किसको कैसे आंसर देना है, इट शोज योर मेंटल हेल्थ। देन बीइंग सोशली एक्टिव, how do you behave in the community, it's also important. Emotional health is also important. Then we have also discussed about the personal and community issues for health, the issues that affect the health। हेल्थ पे असर कैसे पड़ता है? फर्स्ट इज फिजिकल एनवायरनमेंट। अगर सराउंडिंग हमारा क्लीन नहीं है तो क्या होता है कि ज़्यादा बीमार होते हैं। अगर सराउंडिंग में हर जगह कचरा है, घर भले कितना भी क्लीन हो लेकिन घर के आसपास अगर कचरा है तो मॉस्किटोज वगैरह आते हैं and they carry the disease causing organisms, so there is danger to health, it is a threat for health. Then social environment, आसपास के लोग कैसे हैं, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, इट्स ऑल्सो अफेक्टिंग योर हेल्थ। अगर आपके फ्रेंड्स की आदतें अच्छी है ना अर्जन, एग्री विथ मी? योर फ्रेंड्स डिटरमाइन योर हेल्थ। फ्रेंड्स अच्छे पढ़ाई करने वाले हैं, अच्छे बिहेवियर वाले हैं, तमीज वाले हैं, तो आप लोग भी वैसे ही बन जाते हो, है ना? सो दीज आर द सोशल फैक्टर्स। एंड पब्लिक क्लीनलीनेस also plays very important role in determining the health. Even economic condition also, social equality and harmony, it is also important for being healthy. Adnan behave like a healthy student. Now today we are going to discuss about the disease. What is meant by disease? The word disease signifies lack of ease or inconvenience. Disease, देखो ये जो वर्ड है 2 वर्ड से बना हुआ है, dis and ease. Dis means lack of comfort. It is called as disease. How can we define disease? Dis means without or away, और lack of ease means comfort. अगर हमारी तबीयत सही है, सभी ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, that means we are disease free. What is disease? Lack of comfort. When one or more organ system of the body are adversely affected and does not function properly, that is when we have a disease. हमें disease है, ये हम कब कह सकते हैं? When one or more organs of our body are not working properly, then it is affecting our normal behavior. Generally the person who is suffering from any disease, that person is advised to take bed rest. Why? So that their internal body, yes, so they will recover very fast. क्योंकि अगर कोई डिसीज है तो किसी काम में मन लगता ही नहीं है। सपोज आप लोगों ने अभी वर्कआउट शुरू किया है, एक्सरसाइज वगैरह वीडियो बना के आपको सेंड करने हैं, तो अगर आपको रेगुलर आदत है तो आपको कोई दर्द नहीं होता है। लेकिन किसी ने अगर फर्स्ट टाइम किया है तो फर्स्ट टाइम आप लोगों से वर्कआउट कराया, ग्राउंड के 4 चक्कर लगवाए, पैर दुखेंगे ना, तो उससे क्या होगा? फिर कोई और भी काम करना है आपका, उसमें मन लगेगा? नहीं लगेगा। मीन्स इट इज, वी कैन कॉल इट डिसीज, लैक ऑफ कंफर्ट. So this term is used more broadly to refer to any condition that causes pain. Any condition that causes pain, जिसकी वजह से हमें दर्द होता है। So we can call it disease. So can you tell me examples of such conditions that causes pain, injuries, disorders, malfunctioning, etc.
Disorders, malfunctioning means not working properly. So these are the causes of diseases. Even if we do not know the actual cause for discomfort, for instance, we can say that person is suffering from particular disease. For example, if anyone is having stomach problem, generally we say that person is suffering from diarrhea. Nowadays, because of this pandemic, even someone sneezes, the people will run away from that location, right? Why? जरूरी है कि अगर किसी ने छींक मारा, अगर किसी को कफिंग होता है तो वो कोरोना का ही पेशेंट है, कोविड-19 का ही पेशेंट है. It is having so many symptoms and these symptoms are common to common cold. So generally, if we do not know the actual cause for discomfort, we can say that the person is suffering from particular disease. But what kind of disease it is? How do doctors come to know? Yes, कोई भी डिसीज है तो स्पेसिफिक डिसीज पॉइंट आउट कैसे करते हैं डॉक्टर्स? बाय ब्लड टेस्ट, सिम्टम्स से भी, बट मेनी सिम्टम्स आर कॉमन टू द डिसीजेस. सो ब्लड टेस्ट इज परफॉर्म्ड. जैसे अगर कोई डाउट है, आजकल सीपीआर टेस्ट कॉमन हो गया है. कोरोना टेस्ट से पहले सीपीआर टेस्ट करवाया जाता है. ये क्यों करवाया जाता है? कि अगर कोई इन्फेक्शन है तो ये सीपीआर टेस्ट में पता चलता है. उससे सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है कि योर बॉडी इज इन्फेक्टेड बाय द जर्म्स, बट व्हाट काइंड ऑफ डिसीज इज देयर. सो डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज, डॉक्टर सजेस्ट द नेक्स्ट लेवल टेस्ट. तो सीपीआर में फिर अभी आजकल ये कोरोना का डर है, तो जिनका सीपीआर टेस्ट पॉजिटिव आता है उनका ही फिर आगे कोरोना का टेस्ट करवाया जाता है. हर किसी का नहीं करवाते, है ना. जनरली आप लोग आते हो स्कूल में तो क्या चेकिंग होता है? आपका टेम्परेचर देखते हैं, ये जनरल सिम्टम्स है, राइट. अगर आपका टेम्परेचर सही है, अगर आपको कफ कोल्ड नहीं है तो यू गेट एंट्री इन द स्कूल. और अगर है तो उधर से घर जाना है तो गेट पे जाके बस एक छींक मार दो. घर तक छोड़ के आएंगे, हॉस्पिटल तक. यस, जोक्स अपार्ट, अभी इससे कंडीशन ही ऐसी हुई है तो ये हमारी ड्यूटी बनती है, मॉरल ड्यूटी, क्योंकि इससे सिर्फ हमें अकेले कोई खतरा नहीं है ना, पूरी फैमिली को है. So we should take care, right? Now we have to distinguish between healthy and disease free. अभी ये जो हम लोग लास्ट लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिसीज फ्री. व्हाट इज हेल्थ? इट इज ए डायनामिक स्टेट. डायनामिक मीन्स पावरफुल, energetic. Okay, so it is the powerful state of well-being which involves physical, mental and social domains. Health is having three important domains: physical, mental and social. डिसीज फ्री होना मतलब क्या? फिजिकल हेल्थ, राइट. डिसीज फ्री, अगर आपको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, दैट मीन्स यू आर फिजिकली फिट. सो इट इज इंक्लूडेड इन द फिजिकल फिटनेस. सी, हेल्थ इज ए डायनामिक स्टेट ऑफ well-being which involves physical, mental and social domains which satisfies the demands of life corresponding with age, culture, personal responsibilities, etc. अभी हेल्थ जो कॉन्सेप्ट है, it's very broad concept and we can define it in the different ways. For example, for any student, how will you define health? If that student is not having any kind of disease, that student is able to concentrate in the class, that student is doing studies regularly, then we will call that student healthy. Okay, in the view of student. If you consider any dancer, so dancer के लिए health का मतलब क्या होगा बताओ? If there is any dancer, it may mean being able to stretch his or her body gracefully, right? अगर डांसर है तो उनको ग्रेसफुल मूवमेंट्स आने चाहिए. अर्जान, हेल्दी स्टूडेंट और अनहेल्दी? डोंट स्लीप इन द क्लास. सो अगर कोई डांसर है तो उसके लिए हेल्दी होने का मतलब क्या है? That he or should be able
अभी अगर हमें हेल्थ डिस्कस करनी है किसी सिंगर की हेल्थ, कैसे डिटरमाइन होगी? वॉइस, ओके। और if you are a singer, how will you say that you are healthy? Yes, it may mean that the singer is having adequate breathing capacity in his lungs to control the notes in the voice. सिंगिंग वगैरह भी आपने सीखा होगा कभी, या फिर सिंगिंग शोज वगैरह देखे होंगे। सो दे हैव टू कंट्रोल ऑन देयर डायफ्राम, जो आवाज के जो साउंड के जो नोट्स होते हैं अप डाउन उसमें जो करना है, तो अगर उनकी प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है तभी वो कर सकते हैं। सो व्हाट इज हेल्थ फॉर ए एथलीट? एथलीट के लिए हेल्दी होना मतलब क्या? ओके, ब्रीदिंग भी होना चाहिए। और हाँ, इफ यू आर ए क्रिकेटर, हाउ विल यू गेट फिटनेस सर्टिफिकेट? क्या टेस्ट होते हैं अगर आप क्रिकेटर हो और आपको जाना है ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट मंथ? क्या टेस्ट होते हैं? फिटनेस टेस्ट होते हैं ना प्लेयर्स के। या फिर कोई एक बार फेमस प्लेयर हो गया तो उसको हर बार भेज दो, ऐसे होता है क्या? नहीं, उनका फिटनेस टेस्ट होता है हर बार। तो क्या क्या कंसीडर किया जाता है? फिजिकल फिटनेस, इवन मेंटल फिटनेस इज आल्सो रिक्वायर्ड। अभी फिजिकल फिटनेस अच्छी है, सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, अर्जन अभी बैटिंग कर रहा है, 4 रन जरूरी है, लास्ट बॉल बचा है, और बैटिंग करते करते अर्जन ने अगर सोचा कि कल मेरा कौन सा लेक्चर है, क्या होगा? आउट हो जाएगा। क्यों अदनान? अभी अदनान फील्डर है, अदनान को कैच लेना है, और कैच लेते लेते अदनान को याद आया, अरे मैंने मैथ्स का होमवर्क नहीं किया। क्या होगा अदनान? मींस मेंटल हेल्थ इज आल्सो रिक्वायर्ड, है ना? तू क्यों उसको बार बार देख रहा है? Concentrate in the class. Show healthy attitude, not unhealthy. Your behavior shows whether you are healthy or unhealthy. So are you getting concept of health? हर एक किसी के लिए अलग अलग ही कॉन्सेप्ट हो सकता है। अगर किसी वक्त पे हम कोई काम कर रहे हैं तो फिजिकल फिट होना तो जरूरी है, वैसे ही मेंटली फिट भी होना जरूरी है। उस टाइम पे उसी काम के बारे में सोचना है। ओके, मेंटल फिटनेस, you should be able to concentrate on that work. Social fitness also, if you are in community, if you are in class, how should you behave? ये जो अजीब अजीब आवाजें निकालते हैं, it is not a sign of a healthy person. If you are healthy, then behave like a healthy person. See, a disease-free describes so health has 3 important aspects: physical, mental and social. Why I am repeating it again and again? Because not only being disease free determines your health, you should be mentally fit as well as socially fit. Socially fit means you should know how to behave in the community, how to behave with the others. Now disease free describes a condition of well-being where one is not suffering from any disease but cannot be considered as healthy. डिसीज फ्री और हेल्दी दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है। हेल्दी पर्सन को हम डिसीज फ्री कह सकते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट डिसीज फ्री इज ऑलवेज हेल्दी। ओके, फॉर एग्जांपल, बॉडी में फंक्शन इफिशिएंटली, बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट सच पीपल आर मेंटली एंड सोशली स्टेबल एंड एक्टिव. सो नॉट बीइंग डिसीज्ड इज नॉट द सेम एज बीइंग हेल्दी. अगर किसी को कोई भी बीमारी नहीं है, ओके, बॉडी एकदम अच्छी है, लेकिन वो हर बात बात पे गुस्सा करता है, बदतमीजी करता है, तो उसको हम हेल्दी कहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं कहेंगे. या हर बात बात पे झगड़ा करता है, दैट पर्सन विल नॉट बी हेल्दी. डिसीज फ्री और हेल्दी होना अलग अलग बातें हैं. हेल्दी लोग डिसीज फ्री होते हैं, लेकिन डिसीज फ्री लोग हेल्दी हो ये जरूरी नहीं है. See, there is a table of comparison in your book. Comparison between healthy and disease free. Health is a state of complete physical, social and mental well-being. Disease free, it is a state of absence of any kind of disease. It is called as disease free.
health is not about only individuals, it also about the societies as well as communities. हेल्दी होना, हमारी हेल्थ कौन डिटरमाइन करता है? हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी। अगर हमारा अच्छा बिहेवियर है तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हो जाते हैं, और अगर हमारा मिसबिहेवियर है, हेल्दी बिहेवियर नहीं है, तो होंगे क्या हमारे फ्रेंड्स? नहीं। इवन पॉलिटिशियंस में भी देखो, जो फ्रेंडली होते हैं, जो सबके साथ अच्छे बिहेवियर करते हैं, वही पॉलिटिशियंस फेमस हो जाते हैं, उनके ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, राइट? जैसे परसों फेमस पॉलिटिशियन का बर्थडे था, कौन? हाँ, तो उनके इतने सारे फॉलोअर्स क्यों होंगे? एकदम छोटे बच्चे से लेकर तो जो एजेड लोग हैं, वो सारे उनको मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। क्या रीजन है? बिकॉज ऑफ हिज गुड बिहेवियर, है ना? वो कहीं भी जाए, एक बार किसी पर्सन को मिल ले तो उन्हें याद रहता है, तो नेक्स्ट टाइम वो अगर 15 साल बाद भी अगर उस पर्सन को मिलते हैं ना, उसको नाम से बुलाते हैं। ये उनकी खासियत है, हेल्दी बिहेवियर, हाउ ही ट्रीट्स हिज फॉलोअर्स, राइट? डिसीज फ्री इज अबाउट इंडिविजुअल सफरर्स। अगर मैं हेल्दी नहीं हूं तो मेरे अनहेल्दी वजह से होने की वजह से मेरे आसपास के लोगों को भी नुकसान होगा। कैसे? मैं हेल्दी नहीं हूं, मैं सुबह सुबह घर से झगड़ा करके आई हूं, मैं आप लोगों को अननेसेसरी डांटूंगी, गुस्सा करूंगी, तो आपके भी दिमाग पे असर पड़ेगा उसका, आप भी नेगेटिव हो जाओगे। सही बात है ना? अगर मैं अनहेल्दी हूं तो आप पे भी असर है। लेकिन अभी अगर मुझे मसल स्प्रेन है, मेरे हाथ में मसल स्प्रेन है, हाथ में दर्द हो रहा है, हाथ की मसल में, तो वो दर्द सिर्फ मुझे अकेले को हो रहा है ना? So it is a difference between being healthy and disease free. Healthy person is disease free as well, but disease free person is not always healthy. In case of healthy individual, that individual is generally active and stable. एक्टिव रहता है, हर काम में अच्छे से पार्टिसिपेट करता है, दैट पर्सन इज स्टेबल। कोई कुछ कहे उसको फर्क नहीं पड़ता है, दैट पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी। अभी मैं सोचूंगी, मैं आपकी टीचर हूँ, अगर कोई मुझसे बदतमीजी करेगा, ये हिम्मत कैसे हुई इसकी, ऐसे कैसे कर सकता है, देखती हूँ मैं इसको। अगर मैं ऐसा एटीट्यूड रखूँ तो मैं हेल्दी हूँ क्या? हूँ क्या मैं हेल्दी? नहीं। तो मुझे हेल्दी कब कहेंगे आप लोग? यस। कोई मेरे साथ कैसे भी बिहेव करे, मैं अगर स्टेबल बिहेवियर रखती हूँ, मिसबिहेव नहीं करती हूँ, then only I will be healthy. That means I am also not 100% healthy. I am trying to be, but not 100%, right? But we should try to be 100% healthy. In case of disease free, individual may or may not be active or stable in behavior. जनरली आपने देखा होगा कि अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो वो लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, स्टेबल बिहेवियर नहीं होता है ना, अपने आप होता है ना। जैसे अगर बहुत सर दर्द हो रहा है या कोई और बीमारी है, तो छोटे बच्चे हैं तो रोते रहते हैं, बड़े हैं तो गुस्सा करते रहते हैं, चिढ़ते हैं दूसरों पे, है ना? Now we have to discuss what does disease looks like. डिसीज है मतलब ये क्या चीज है? व्हाट डज डिसीज लुक लाइक? See each of the organ system in our body. Yes, any problem? बोर हो रहा है? 5 minutes are there. आप लोगों को मैं बोलती रहती हूँ हेल्दी होने का आप प्रूव करो। अगर क्लास अच्छे से चल रहा है और आप पूछ रहे हो टाइम क्या हुआ है, तो सोच रहे हो आप हेल्दी हो क्या? हेल्दी होना बहुत जरूरी है बेटा। एक बार पैसे कम हो चलेगा, लेकिन हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जान है तो जहान है, और जान कब रहेगी? जब आप हेल्दी रहोगे। हेल्थ का इंपॉर्टेंस उसको पूछो जिनके पास अगर एक्सीडेंट में अगर उनका कोई बॉडी पार्ट अगर मिसप्लेस हुआ है
या कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उनको पूछो क्या इंपॉर्टेंस है हेल्थ का, है ना। What does disease looks like? Now see, each of the organ system in our body has a specific function to perform. For example, our musculoskeletal system. Musculoskeletal system, it is made up of bones and muscles. This system functions to hold the body parts together and helps in the body movement. मसल्स की और बोन्स की एक साथ जो सिस्टम काम करती है, इट इज कॉल्ड एज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। सो उसका इंपॉर्टेंट रोल देखो क्या है, इट होल्ड्स द बॉडी पार्ट्स टुगेदर एंड हेल्प्स इन द इजी मूवमेंट ऑफ द बॉडी। द malfunctioning of any of these organs and organ systems is characterized by signs and symptoms। अभी हम ये बहुत बार ये वर्ड्स यूज करते हैं, सिम्टम्स एंड साइंस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन signs and symptoms? साइंस क्या होते हैं किसी डिसीज के और सिम्टम्स क्या होते हैं? See, the signs and symptoms of disease are used interchangeably in the common practice। हम ये बहुत बार ये वर्ड्स यूज करते हैं, signs and symptoms of the disease, but there is a fine difference between the two terms, signs and symptoms। These two terms are totally different। We may have developed a cough or headache or diarrhea or a wound with pus at some point of life in our टाइम इन अवर लाइफ में कभी ना कभी हमें कफ एंड कोल्ड, कभी ना कभी क्यों हर साल होता है, जैसे ही मौसम चेंज होता है हमें कफ एंड कोल्ड होता है, पेट दर्द होता है, अगर आपने कोई गलत चीज खा ली या फिर किसी और जगह का पानी पी लिया, ठीक है, अगर पोल्यूटेड वाटर है, देन वी मे हैव स्टमक प्रॉब्लम्स। होता है ना, हर किसी को होता है, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है कि जिसको कभी कोई हेल्थ इश्यू नहीं हुआ है। सो these are all symptoms indicating a discomfort, but they do not indicate a specific disease। For example, cough and cold, it is a common symptom for many diseases। अगर cough cold है तो common cold हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, और कौन सा डिसीज हो सकता है? Yes, fever is not a disease, it is a defense mechanism of our body। आपको पता है फीवर कब आता है? जब हमें इन्फेक्शन होता है, when germs enter our body, then there is a defense system in our body। इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी में जो डिफेंस का रोल करती है। so it raises our body temperature to kill the germs। मतलब फीवर बीमारी नहीं है, फीवर किस लिए आता है? वो जर्म्स को मारने के लिए। अगर कम क्वांटिटी में है वो जर्म्स, तो फीवर से वो जर्म्स मर जाते हैं, देन वी फील बेटर। लेकिन अगर जर्म्स का अटैक अगर ज्यादा है, देन वी नीड मेडिसिन्स। ओके, सो फीवर इज नॉट ए डिसीज। इम्यून सिस्टम क्या करती है? टेम्परेचर बढ़ाती है वो जर्म्स को मारने के लिए। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ डिसीजेस है, फॉर एग्जांपल डिसीज डेंगू। सो डेंगू के जो सिम्टम्स है, हाई फीवर, हेडेक, पेन बिहाइंड द आईज, सीवियर जॉइंट एंड मसल पेन, nausea, vomiting and skin rashes। so it can be mistaken for flu। अगर किसी को हेडेक है, देन जॉइंट पेन है, मस्कुलर पेन है, पेन आंखों के पीछे बहुत ज्यादा दर्द होता है, सो इट कैन बी टेकन फॉर एनी अदर डिसीज। हुआ है कभी किसी को डेंगू? नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, मच्छर में स्प्रेड हो रहा है ऐसे सुना है मैंने, डेंगू और चिकनगुनिया। सो दिस टू डिसीजेस आर मिस्टेकन। अगर प्रॉपर डॉक्टर को पता नहीं चला, सिमिलर सिम्टम्स दिखाते हैं, और अगर डॉक्टर ने चिकनगुनिया का ट्रीटमेंट दिया और डिसीज है डेंगू, तो क्या होगा? इट विल बी हार्मफुल फॉर द पेशेंट। ओके, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। जैसे आप ये देखो, ये कोविड-19 का दर इतना ज्यादा हुआ है कि अगर कफ, कोल्ड या फिर टेस्टलेसनेस, ब्रेथलेसनेस वगैरह, तो ये सिम्टम्स न्यूमोनिया के भी होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स
disease. Okay.